good morning students. I just gave you recap of yesterday's lecture. So now we will be proceeding further. Industrial Policy Resolution of 1956. This we will be discussing today. So this policy aimed at the development of industries or industrial sector in India. By this time we had realized that the balanced growth of the economy, balanced development of the economy was must for the development of our economy. We just cannot focus on agricultural sector and ask for the development of the country. So development of the country, of the economy required the development of the industrial sector as well. So in 1956, a new industrial policy, which is commonly known by the name of IPR 1956, it was announced by the government. So we will be discussing just a few, the policy when government announces, bete, it is not a small one like we study in our books. Books में उसका एक छोटा सा summary बना के हमें दी जाती है, pointers दिए जाते हैं, ठीक है? Other than that, this policy, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, उसके हमें एक रीकैप पॉइंटर्स दिए जाते हैं. अदरवाइज पढ़ने में हमारे उसकी पीडीएफ देखे तो इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. ठीक है, तो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते होते हैं. सो बेटे इस पॉलिसी को जब अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, तो ये रियलाइज हो गया कि इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि आज से इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में लीडिंग रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का ही होगा. गवर्नमेंट वुड प्ले अ लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, एंड दिस पॉलिसी आल्सो लेड ए रोड मैप ऑफ द सेकंड 5-year प्लान. If you have studied in your 8th, 9th classes geography, you have studied, I know, but if you remember that many iron and steel plants were established in various cities or states like Jamshedpur, Rourkela, Bokaro, okay, in all these states with the partnership of the foreign companies, iron and steel plants were set up by the government of India. ठीक है, ये सब बेटे पब्लिक सेक्टर के थ्रू हुआ. इससे आयरन एंड स्टील क्या होता है, ये बेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का. अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप होगी तो आगे मशीन मेकिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी. सो दिस इज द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. So it was realized that it was important to construct the base of industrialization. So in the second 5-year plan, which was from 1956 to 1961, तो इसमें काफी ज्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए. सो ऑल दैट वाज इन कंसोनेंस विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956. ठीक है, now let us discuss the main features of this IPR. बेटे 3 main features नोट डाउन कर लो अपनी जो आपने एक्स्ट्रा नोटबुक लगाई हुई है. ठीक है, सबसे पहला फीचर दैट इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, क्या पर्पस था अभी आपको पता चलेगा, सिर्फ सुनो, आप ध्यान से सुनो. शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज, शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज. हो सकता है कि आपकी बुक में नाम नहीं दिया हो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी. सो राइट इट डाउन. That industries were classified into 3 categories: Schedule A, Schedule B, Schedule C. Schedule A industries consisted of all those industries which could be developed and built exclusively as public sector enterprises. But there were about 17 such industries were there which could be set up exclusively as public sector enterprises. These were arms and ammunition, atomic energy, iron and steel, mineral oil, mining, shipbuilding, railway transportation, air transport, heavy electrical plants, heavy machinery, even telephone.
ठीक है। एंड वायरलेस इंडस्ट्री जो थी, आयरन ओर इंडस्ट्री थी, और बाकी और भी मिनरल्स की जो इंडस्ट्रीज थी, 17 टोटल इंडस्ट्रीज ऐसी थी which could be exclusively set up by the public sector enterprises. ठीक है। The responsibility of development of these industries, it was exclusively given to the government. प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्री को चाहकर भी सेटअप नहीं कर सकता था. Got it? These 17 industries which could be exclusively developed as public sector enterprises were given under Schedule A of IPR. So these come to be known as Schedule A industries. Next है बेटे Schedule B industries. इनमें 12 इंडस्ट्रीज थी. ठीक है. ये जो इंडस्ट्रीज थी, these will be progressively state owned. लिख लो आप, progressively state owned, which means अब ये जो 12 इंडस्ट्रीज थी, these could be both public under public sector as well as private sector. ठीक है. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी, इनमें 12 इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज थी जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया, मशीन पार्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, रोडवे हो गई, सीवेज हो गई, केमिकल्स हो गए. ठीक है. ये 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी. अगर तो ये प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है, देन नो प्रॉब्लम, दे वुड कंटिन्यू टू डू सो. बट if new enterprises are to be set up in 12 इंडस्ट्री में से, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, आपके पास कैपिटल है, आप कहते हो कि आपको पंजाब में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खोलनी है, तो अगर 1956 की हम बात करें, ये 1990 तक ही ऐसे चला, आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं खोल सकते प्राइवेट सेक्टर में. ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल बी इंडस्ट्री है. इसमें अगर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो पब्लिक सेक्टर ही करेगा. तो इन 12 इंडस्ट्रीज में these were progressively state owned. The government would gradually set up new units and private sector would be expected to supplement the efforts of the government. State would take the sole responsibility for starting new units. अगर कोई नए यूनिट्स इसमें सेटअप होने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर सेटअप कर सकता है. ठीक है, या कर सकता था. तो इन 12 इंडस्ट्री में मैंने आपको कुछ बता दी. एल्यूमिनियम है, ठीक है, माइनिंग है, नॉन फेरस मेटल्स है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, इवन मेडिसिन है, रोडवेज है, सीवेज है. ठीक है. So these were to be set up by the public sector. Now already existing units could be carried on by the private sector. ठीक है. These were Schedule B industries. Coming to the Schedule C industries. Schedule C industry में बेटे Schedule A और Schedule B या Category 1 और Category 2 यानी 17 plus 12 industries को छोड़ के बाकी जितनी भी इंडस्ट्री बचती है वो Schedule C है. And these were left to be operated by the private sector. ठीक है. इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, गवर्नमेंट इनकरेज करेगी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा हुआ था इवन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू. वो आपको आगे पता चलेगा. अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो शेड्यूल सी इंडस्ट्री है, इसमें 17 plus 12 को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं. And these could be set up by the private sector, even though government would be supervising these industries. ठीक है, but these could be set up by the government, private sector. ठीक है. ये पहला बेटे फीचर है IPR 1956 का. ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया था. Coming to the second feature, which is industrial licensing. अब बेटे जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज, even though these could be set up by the private sector, but these could be set up by the private sector, but with the license
to be obtained from the central government. लाइसेंसिंग सिस्टम था उस टाइम पे, याद रखना। लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस क्या होता है? जैसे आपको अगर ड्राइविंग करनी है तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, तो विच मींस नाउ यू आर परमिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ड्राइव योर व्हीकल. Similarly, to set up any industry, you had to, or the industrialist had to obtain license from the central government. उस लाइसेंस में बेटे क्या क्या मेंशन होता था? प्लेस जहाँ पे आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, देन उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तक भी मेंशन होती थी. ठीक है. लाइसेंसिंग पॉलिसी के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के. One of the objective was government of India wanted to promote regional equality. रीजनल इक्वालिटी का मतलब हमारे कुछ रीजन्स ऐसे थे जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड थे बेटे उस टाइम पे, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया. तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनमें से किसी स्टेट में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो उसको लाइसेंस जल्दी मिल जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? रीजनल इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना. उसके अलावा लाइसेंसिंग के पीछे कारण क्या था? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप द इंडस्ट्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग. जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा था, 5 ईयर प्लान चल रहा था, हम चाहते थे कि हम उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करें. ठीक है. सो टू डेवलप द इंडस्ट्री in accordance with the set priorities of economic planning was one of the objective of licensing system. Then government also wanted to keep control over setting up, expansion, ownership of industrial unit. उस टाइम पे बेटे हमारी गवर्नमेंट कुछ डरी सी हुई थी. ठीक है. हम नहीं चाहते थे, हम सोशलिस्टिक पैटर्न पे अपनी कंट्री को चलाना चाहते थे. समझते हो ना सोशलिस्टिक पैटर्न? Anyone who would explain me the meaning of socialistic pattern? Yes. Raise your hand. Raise your hand, bete. No one. बेटे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब ये होता है कि हम वी वांटेड टू प्रमोट सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. वी नेवर वांटेड कैपिटलिज्म, दैट इज हम प्राइवेट ओनरशिप इतनी ज्यादा इनकरेज नहीं करना चाहते थे. उससे क्या होता था? उससे रिच वुड गेट रिचर एंड पुअर वुड गेट पुअरर. वी वांटेड टू प्रमोट इक्विटी इन आवर कंट्री. सो हम चाहते थे रिच और पुअर का जो गैप है वो नहीं रहे, सब एक जैसे हो. ठीक है. तो इसीलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एक कंट्रोल अगर रखेगी कि हु इज ओनिंग दिस इंडस्ट्री. ऐसा तो नहीं है कोई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं, कैपिटलिस्ट जो हैं, वही इंडस्ट्री सेटअप करी जा रहे हैं. इससे मोनोपोली को प्रमोट होने के चांसेस थे. सो गवर्नमेंट वांटेड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइजेस, ओवर द एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस. ठीक है. ओवर द ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स. So that's why licensing system was adopted. फिर गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि वायबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए. अगर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो कंट्री के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. अब रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स थे. ठीक है. वो स्कैसिटी जो है वो उन रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा घातक थी. जो अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल हमें चाहिए था और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, so that could lead to extinction of that resource. So government चाहती थी viable resources ही एक्सप्लॉइट हो. तो इसीलिए गवर्नमेंट कि अगर कंट्रोल में होगा, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को परमिशन देनी या किसी पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन को रोकना, that would be really good for the country. और to reduce regional inequality ये मैंने आपको बता ही दिया है.
ठीक है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये रीजन थे लाइसेंस के। लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि आपको इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस यानी कि परमिशन लेने की जरूरत थी। नॉट ओनली टू सेटअप द इंडस्ट्री, कल को आपने एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है, और आपको लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस में ये लिखा है कि 1000 यूनिट्स पर डे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपने इंडस्ट्री बनाई है आप उसके 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ यू रियलाइज कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर प्रोडक्शन, you cannot do so because in your license the production capacity is mentioned, ठीक है, for that you have to obtain the new license. Is it clear bete? So this was all about industrial licensing. Coming to the third feature of IPR 1956, which is industrial concessions. We call them incentives, we call them SOPs, SOPs. By all these terms, we mean the same thing. That is the concessions. So obviously, the development of industry was very, very important for our economy at that stage. We wanted more and more people to invest in the industries. So to encourage the private entrepreneurs, especially to encourage them to establish industries in the backward regions of the country, they were given various concessions. ठीक है, हम चाहते थे बेटे इंडस्ट्रियल कंसेशन का जो पर्पस था that was also to promote regional equality. Our government wanted to promote regional equality. There was regional disparities present in our country. Many regions, like I told you, Odisha, Bihar, UP, these were underdeveloped, right? So we wanted to promote these regions. So agar bete private entrepreneurs, they would come up with such kind of project as to establish the industries in the backward regions. They were given various incentives. Tax holiday was one of the incentive. What do you mean by tax holiday? Anyone? Gaurav, what is the meaning of tax holiday according to you? Samriddhi, Sukhman, So it's meaning the okay. Okay, students have given me answers in the chat box that they don't need to pay tax for a particular period, right, Lakshit? Right, Suhani? And what about Manpreet? Elimination of tax. Manpreet, tax is not eliminated. You are not supposed to pay tax for a few years, like 5 years. जैसे आजकल गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के साथ ऐसा कर रही है, टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट कहती है आप हम 5 सालों तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आप इस एरिया में अपने एंटरप्राइज सेटअप करिए। Secondly, government may also give some subsidies. Subsidies means financial assistance, like electricity subsidized rate पे दे सकती है, generator subsidized rate पे दे सकती है, land subsidized rate पे दे सकती है government, ठीक है। So this was done under IPR 1956. तो ये बेटे 3 मेन फीचर्स हो गए IPR के। अब नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमने पढ़ा है कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी ग्रोथ की, उसमें पहला पॉइंट हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न अडॉप्ट किया, दूसरा हमने पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड किया। क्यों एक्सपैंड किया? क्योंकि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस होती हैं उनको ऊपर फोकस करना चाहते थे। फिर बेटे हमने प्राइवेट सेक्टर को अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा। चौथा हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया। फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
अगर हम आजकल की डेफिनेशन देखें, प्रेजेंट डेफिनेशन देखें, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो एंटरप्राइज मानी जाती है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है प्लांट एंड मशीनरी में, नॉट इन लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू ₹5 करोड़, 5 करोड़, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अगर एक एंटरप्राइज में हुई है प्लांट एंड मशीनरी में, तो उस एंटरप्राइज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माना जाता है। At that time, small scale industry was defined as the one whose investment limit did not exceed ₹5 lakh. So बेटे इतनी महंगाई हो गई है कि हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 5 लाख से 5 करोड़ तक पहुंच गई है। Obviously, we need to change this limit from time to time. क्योंकि 5 लाख में तो आजकल कुछ आता ही नहीं है बेटे, रॉ मटेरियल भी नहीं हमारा आता है, तो 5 ऐसे तो हमारी सारी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही हो जाएंगी। तो विद चेंजिंग टाइम, with change in rate of inflation, so with change modernization, we have to invest more in our plant and machinery. So with times, as the times change, we have to change the investment limit. Currently, small scale industry is defined as one whose investment in plant and machinery does not exceed ₹5 करोड़। ठीक है, सो बेटे हम थोड़ा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फीचर्स। पहला फीचर, इट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, वो कैसे? इट मेक्स यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। सो जो भी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। सेकेंडली, इट इज नोटेड डाउन, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। रीजन, दे मेक यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंडली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज they lead to equitable distribution of income and wealth. income और wealth की equitable distribution इससे possible हो पाती है। All of us are aware, in our country there exist inequalities in income. Wide gap between rich and poor is there. How can we remove it? We have to promote the poor community of our country. How can we do that? By providing them employment opportunities, by increasing their income. So how small scale industry would help us in that? Which is small scale industry can be set up with lesser investment. So any person with limited means can set up small scale industry, and it can also generate employment opportunities. ना सिर्फ वो खुद को एम्प्लॉय कर रहा है, वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दिस वे देयर इनकम विल इंक्रीज। ठीक है, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जो इक्विटेबल इनकम का हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ऑब्जेक्टिव है वो अटेन हो जाएगा। अगर बेटे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सिर्फ ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ ही सेटअप हो सकती है। इसका मतलब वही टाटा बिरलास ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे, और मोरओवर दे मेक यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। उनसे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट नहीं होती है, तो लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, तो रिच वुड बिकम रिचर एंड पुअर वुड बिकम पुअरर। दैट्स व्हाई फोकस वाज आल्सो मेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Then bete, these industries make use of local resources and their operating cycle is very small. फटाफट प्रोडक्शन हो जाती है, आज शुरू किया और जल्दी से आउटपुट निकलना शुरू हो जाता है, मार्केट में बिकना लग जाता है और रिटर्न जल्दी आ जाती है, यानी फ्यूशन लैग जो है वो कम होता है। ठीक है, सो दिस आल्सो गिव्स राइज टू ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट बेसिकली फोकस्ड on the protection of small scale industry. गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्टेप्स उठाए। Anyone, any idea what could be the
steps taken by the government for the protection of small scale industry. Achieve. Okay, one answer I got, they provided raw material. Second answer I got flexible credit opportunities, right? Both these answers are right बेटे. Basically government ने क्या किया, सबसे पहले government ने कुछ industries reserve कर दी small scale sector के लिए. एक list बनाई government ने कहा ये जो industries हैं, these can be set up only by small sector, not by large sector. लार्ज सेक्टर इसमें एंटर ही नहीं कर सकता. ये सारी इंडस्ट्रीज की जो लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट कहती है उसमें सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही एंटर कर सकता है. तो इससे प्रोटेक्शन कैसे हुई बेटे, अगर सेम इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करेगा, जैसे टीवी मेकिंग यूनिट है सपोज करो, स्मॉल स्केल सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव है, वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाता, लेकिन लार्ज सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, तो नेचुरली उनके गुड्स ज्यादा चीपर रेट पे अवेलेबल होंगे एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल. तो स्मॉल स्केल की मार्केट खत्म हो जाएगी. तो इसीलिए उन्होंने कहा ये जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर, नो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैन एंटर इन दिस एरिया. ठीक है. देन दे वर आल्सो गिवन बेटे कंसेशंस लाइक ड्यूटी कम कर दी गई, टैक्स रेट कम कर दिए गए, उनको बैंक लोन प्रोवाइड किया गया लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू दी स्मॉल स्केल सेक्टर. ठीक है. सो नाउ दैट वी आर अवेयर अबाउट IPR 1956, we are aware about the strategy of the government which government followed from 1950 and continued till 1990. All this continued till 1990 बेटे. ठीक है. ऐसा सब ये जो पॉलिसी थी इसमें कुछ रिविजन आती रही, लेकिन मोर और लेस जो स्ट्रक्चर था हमारी स्ट्रेटजी का कि हमने पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल्स दे रखा, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया. ये जो पॉइंट्स थे ये सेम रहे. These were the features of the strategy adopted for the industrial growth from 1950 till 1990. Now let us analyze this strategy. Analysis करने का मतलब इसके good effects क्या रहे और इसके bad effects क्या रहे. ठीक है. तो सबसे पहले फीचर्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. ये जो मैंने आपको स्लाइड शो की हुई है that relates to features. Number one, public enterprises were to play a central role in the process of industrialization. Number two, private sector was only to play a secondary role in the process of industrialization. Then domestic industry was to be protected from foreign competition. Very important point. Domestic industry was to be protected from foreign competition. अब हमें ना एक वो कहते हैं ना लाइक दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. सेम वाज द केस विद अस. ब्रिटिशर्स का हमें इतना बिटर एक्सपीरियंस था कि नाउ वी वर अफ्रेड ऑफ ऑल दी फॉरेनर्स. ठीक है. तो हमने फॉरेन गुड्स की एंट्री के ऊपर रोक लगा रखी थी. एक्सप्लिसिटली कोई रोक नहीं थी. वी हैड इम्पोज्ड हेवी ड्यूटी, heavy import duty, ठीक है, on these goods, so that when they enter our country, their prices would increase multiple fold. As a result, वो हमारे domestic goods के साथ compete नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Then large scale industry was to be developed with a view to building an infrastructural base in the country. Large scale industry की development के ऊपर focus किया. Purpose क्या था? Infrastructure base को strong करना. Then small scale industry को develop करने की कोशिश की गई. पर्पस क्या था? एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स वी विल डिस्कस डे आफ्टर, एंड बेटे यू विल बी हैविंग योर टेस्ट ऑन मंडे ऑफ द सेम चैप्टर.